Hello students, welcome to SD Learning, and today we are going to start the new topic, kinetic energy of a rotating body of chapter same rotational dynamics. In the last lecture we discussed about the moment of inertia. We discussed about the moment of inertia and how to calculate the moment of inertia. The formula was I is equal to m1 r1 square plus m2 r2 square dot 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 mn rn square. We can say that the formula of moment of inertia is product of mass and square of the perpendicular distance. Product of mass, just remember this, the formula of moment of inertia is, what is moment of inertia if you say in terms of formula, that is product of mass and square of the perpendicular distance, where r is the perpendicular distance and m was the mass. तो total हमने submission करके I is equal to mi square किया था ना, I is equal to 1 to n लेके sublimation के फॉर्म में लिखा था, प्रॉपर ना सबमिशन के फॉर्म में लिखा था. And in the last lecture we discussed about some kinematics of the rotational dynamics and the rotational motion. So today we are going to start with the derivation of kinetic energy of a rotating body, very important derivation. Okay, so see here, I have drawn one diagram here. Here there is one rigid body. We have to take the rigid body in our rotational motion chapter proper. So this is a rigid body of irregular shape. आपको कोई भी बॉडी आप ले सकते हो, कोई भी एक irregular shape का एक बॉडी लिया, which is rotating with constant angular velocity omega, which is rotating with constant angular velocity omega. इसको constant angular velocity omega से घुमा दिया. There are n number of particle in this. Okay, so I took here three particles, m1, m2 and mn, because the body consists of n particles, but I am taking just three particles, m1, m2, mn. We will study whole derivation of these three particles and similarly we will derive for the whole body. प्रॉपर आप एक पार्टिकल के ऊपर करो उसको होल बॉडी के ऊपर भी डिराइव कर सकते हो. तो सी m1, m2, mn, and this is the center, this is the axis of rotation. This all we discussed in the last lecture. What is axis of rotation and what is the importance of that? m1 is situated at a distance of r1, m2 is situated at a distance of r2, and mn is situated at a distance of rn from the center of the axis of rotation. आपको फर्स्ट लाइन ये थोड़ा आपको लिखना पड़ता है स्टेट बोर्ड में. यू नो अबाउट दिस इन द डेरिवेशन दैट कंसीडर ए रिजिड बॉडी, यू कैन से कंसीडर ए रिजिड बॉडी ऑफ मास m, द होल बॉडी ऑफ द मास, द होल mass of the body is capital M. Consider a rigid body of a mass m rotating with constant angular velocity omega about an axis passing through center O, center of mass O, and perpendicular to plane. Okay, this is the first point which you have to write on the derivation while supposing and while to start this all. Consider rigid body of mass m rotating with constant angular velocity omega. What you are watching in the diagram, just you have to write that. Okay, you can write in your own terms. After this second point I have written here, body consists of n particles. Proper, this system of particle, body consists of n particle of mass m1, m2 and mn dot 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 mn, mass m1, m2 and dot 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 mn, situated at distance of r1, r2 and rn, r1, r2 and rn respectively from center of axis of rotation. A or R means axis of rotation. This is the second point. Third point, we know the formula of linear velocity. Linear velocity formula क्या था? V is equal to r omega. So here linear velocity of particle of masses m1, m2 and mn, तीनों particle का मैं लिखने वाला हूँ. linear velocity का formula is v1, v2 and vn is given by v1 is equal to r1 omega, v2 is equal to r2 omega, vn is equal to r1 omega. Here I have not written omega 1, omega 2, omega n, because in the first point only we have supposed that body is rotating with constant angular velocity omega, and we know when we are assuming the rigid body, in that angular velocity, angular acceleration, angular displacement are constant, so that's why we are taking the rigid body. In the first lecture we discussed about all this. Okay, so I have written the formula of v1, v2 and vn. Now what we have to derive actually, आपको ये याद रखना है कि आपको काइनेटिक एनर्जी निकालना है, जो बॉडी घूम रहा है ना उसका काइनेटिक एनर्जी निकालना है. तो आई हैव कैलकुलेटेड द v ना, नाउ आई हैव टू कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी. ओके, वी नो द काइनेटिक एनर्जी बेसिक फॉर्मूला. व्हाट इज द बेसिक फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशनल मोशन? हाफ mv स्क्वायर. सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल m1, m2 and mn given by particle of masses, particle of masses m1, m2 and mn given by kinetic energy 1 half m1 v1 square, kinetic energy 2 half m2 v2 square, kinetic energy n half mn vn square. Okay, half mn vn square. अच्छा, we know actually, wait, we know the formula of v1 na? We have the formula of v1, v2 and vn. Put this v1 here, put the value of v1 here. So what you will get? r1 square omega square na. Here I have written v2 का value आप put करो,
R2 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, देखो V2 का वैल्यू ऊपर से, Vn का वैल्यू ऊपर से पुट करो, Rn स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, प्रॉपर. Now we have to calculate the kinetic energy of rotating body. This is the kinetic energy of particles of mass m1, m2, mn. So for calculating total kinetic energy of a rotating body is given by kinetic energy total. सब kinetic energy को आप बस सम अप कर दो, 1 2 डॉट 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 kinetic energy n. आप अगर सबको प्लस करोगे ये kinetic energy को, what is common? Half is common and omega is also common ना. Remove that half, omega square remove that. What will remain? m1 r1 square plus m2 r2 square dot 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 mn rn square will remain. And in the last lecture we have derived the formula how to calculate the moment of inertia. The formula of moment of inertia was I is equal to mr square na. This was the formula we got. I is equal to summation of mi ri square. Okay, so here आपको ये मिलेगा m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर डॉट 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 mn rn स्क्वायर. आप उन सबको प्लस करोगे तो यू आर गोइंग टू गेट सबमिशन के फॉर्म में लिखोगे तो आपको ये मिलेगा. सो आई हैव रिटन डायरेक्टली हियर. आपको एक और स्टेप लिखना पड़ेगा इसके पहले. सो वी आर गोइंग टू गेट दिस एंड व्हाट डज दिस मीन? आई ना, आई मींस मोमेंट ऑफ इनर्शिया. सो आई हैव रिटन हियर half omega square. For this I have written I, half I omega square. This we got the formula of kinetic energy of rotating body. ये जो बॉडी घूम रहा है उसका काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है. अच्छा, हमारे पास काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल का फॉर्मूला क्या है? बेसिक फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी व्हाट यू स्टडीड इन द 9th स्टैंडर्ड, हाफ mv स्क्वायर. काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल इज हाफ mv स्क्वायर. अब ये काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल का ये हमें पहले से पता है, काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशन. नाउ सी बोथ दिस फॉर्मूला एंड डू द एनालॉजी. व्हाट इज सेम? हाफ हाफ इज सेम. v ये लीनियर वेलोसिटी रहता था ट्रांसलेशनल मोशन का, v स्क्वायर के बदले ओमेगा स्क्वायर आ गया. एंगुलर वेलोसिटी बिकॉज वी आर स्टडीइंग द एंगुलर मोशन ना, v के बदले ओमेगा आ गया. m के बदले m वाज प्रेजेंट इन लीनियर मोशन, m का जगह किसने ले लिया? I ने. I मींस मोमेंट ऑफ इनर्शिया. सो आई कैन से वन स्टेटमेंट हियर, व्हाटएवर रोल मास प्लेज इन लीनियर और ट्रांसलेशनल मोशन, in translational motion, same role is played by the moment of inertia in rotation. जब ट्रांसलेशनल मोशन रहेगा तो m आएगा मोशन में, और जब रोटेशनल होगा तो सेम रोल, सेम फॉर्मूला है, बस m के बदले आई आ गया क्योंकि मोशन चेंज हुआ है. मैंने आपको सिलेंडर वाला एक एग्जांपल दिया था इन द लास्ट लेक्चर. आई वाज सेइंग दैट when you are performing the linear motion, when that cylinder was performing the linear motion, is carrying that cylinder on his shoulder and walking, when he is performing that linear motion, तो उसको ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा था बिकॉज मास वॉज द रेजिस्टेंस. उसको ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा था, उसको पूरा मास ओवरकम करना पड़ रहा था सिलेंडर का. एंड व्हेन ही वाज रोलिंग दैट सिलेंडर, एट दैट टाइम द सिलेंडर वाज परफॉर्मिंग ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन बोथ, एंड इन दैट टाइम एक्चुअली द रेजिस्टेंस वाज लेस. उसको कम प्रॉब्लम हो रहा था, इजिली कर पा रहा था बिकॉज मास का जगह किसने ले लिया था रेजिस्टेंस के लिए? मोमेंट ऑफ इनर्शिया. और मोमेंट ऑफ इनर्शिया का रेजिस्टेंस क्या था? कम था. तो सेम है, वॉट एवर रोल, ऑलवेज रिमेंबर दिस पंच स्टेटमेंट, वॉट एवर रोल मास प्लेज इन द ट्रांसलेशनल मोशन, सेम रोल इज प्लेस्ड बाय द मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन रोटेशनल मोशन. प्रॉपर. बट डोंट थिंक दैट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज मास. डोंट थिंक अबाउट दैट. जब मोशन चेंज होगा तो अलग अलग रेजिस्टेंस आते हैं. प्रॉपर ना? ओके. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द टॉर्क ऑफ ए रोटेटिंग बॉडी. वी आर गोइंग टू डिराइव द डेरिवेशन ऑफ ए टॉर्क ऑफ ए रोटेटिंग बॉडी. That derivation is also same. Here we have to write some of the point. So we will start this. Okay. So here we are going to start with the torque acting on a rotating body. Just now before this we discussed about the kinetic energy of a rotating body. Okay. This derivation is similar to the previous one. In the kinetic energy of a rotating body, we have put the velocity of the particle v1, v2 and vn, and in that we have to derive the kinetic energy. Now here we have to derive the torque acting on a rotating body, and in torque instead of v, here we have to take the linear acceleration. In the previous derivation we took the linear velocity v1, v2, vn. Now here we have to take the linear acceleration a1, a2, an. Proper. And after that, for calculating the torque, we know the formula of basic by definition. What is the formula of torque? Torque is equal to Fr na, in terms of scalar. Torque is Fr na, force into perpendicular distance. And what is the formula of force? Basic formula of force according to Newton's second law. फोर्स का फॉर्मूला क्या है? मास इनटू एक्सेलरेशन. सो बाय सबमिटिंग ऑफ ऑल दिस फॉर्मूला वी कैन डिराइव this equation of derivation of torque. Okay, so here I have drawn that same diagram, expression of torque in terms of moment of inertia. Topic is
in with respect to your textbook, and the topic name is this. So here we have derived, here we have drawn one diagram. This diagram is also similar to that previous one. देखो यहाँ पर मैंने वहां पर V लिखा था मैंने खाली V1, V2, Vn, यहाँ पर मैंने लिख दिया F1, F2, Fn. In last diagram, the body was moving with constant angular velocity omega. Here we don't have to derive the omega. Here we don't have to take the omega. Here the body is moving with constant angular acceleration alpha. Proper ना? Rigid body का angular displacement, angular velocity और angular acceleration तीनों same रहता है. तो here actually I need the alpha, so that's why I'm using the alpha. ऐसा नहीं कि जब मेरा मन है ओमेगा, जब मेरा मन है अल्फा. एक्चुअली जो टॉर्क का फॉर्मूला आने वाला है ना, वो in terms of angular acceleration आने वाला है. So that's why I have used that body is rotating with constant angular velocity alpha. Constant angular acceleration, sorry, here alpha is constant angular acceleration. Here the body is rotating with constant angular acceleration alpha. Okay, सेम आपको लिखना है कंसिडर रिजिड बॉडी. सेम जैसे मैंने आपको पॉइंट बताया था, कंसिडर रिजिड बॉडी ऑफ मास m रोटेटिंग विद कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन. वहां पर क्या था, कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी. यहां पर लिखना है कंसिडर रिजिड बॉडी ऑफ मास m रोटेटिंग विद कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास and perpendicular to plane. And the second point is even same, as the body consists of n particle of mass m1, m2, mn situated at distance of perpendicular distance of r1, r2, rn respectively from axis of rotation. प्रॉपर ये दो पॉइंट आपको सिमिलर लिखना है. जस्ट वहां पर लीनियर वेलोसिटी था, यहां पर लीनियर एक्सेलरेशन आने वाला है. प्रॉपर एंड हियर वी हैव टू डिराइव द टॉर्क, नॉट काइनेटिक एनर्जी. सो लीनियर एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल m1, m2, mn गिवन बाय लीनियर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है, सर्कुलर मोशन में भी पढ़ा है. a इज इक्वल टू r1 अल्फा ना. लीनियर एक्सेलरेशन का बेसिक फॉर्मूला क्या है, a इज इक्वल टू r अल्फा. 11th स्टैंडर्ड में भी था आपको. सो लीनियर एक्सेलरेशन का बेसिक फॉर्मूला ऐसे v का फॉर्मूला r ओमेगा है ना, तो आप उसको डेरिवेटिव लोगे. v का v इज इक्वल टू r ओमेगा का आप डेरिवेटिव करोगे, यू विल गेट दिस फॉर्मूला. आप डेरिवेटिव चाहिए तो करके देख लो. v इज इक्वल टू r ओमेगा का डेरिवेटिव ले लो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यू विल गेट दिस a इज इक्वल टू r अल्फा. प्रॉपर. तो फॉर a r अल्फा बेसिक फॉर्मूला है. So for first particle a1 is equal to r1 alpha, a2 is equal to r2 alpha, and an is equal to rn alpha. Alpha is constant, so that's why I have not written alpha 1, alpha 2, alpha n. Proper. अच्छा, according to Newton's second law, force acting on m1, m2, and mn given by what is the basic formula of force f1, f2, and fn. According to Newton's second law, what is the formula of force? f1 is equal to m1 a1. f का formula m है ना. f1 is equal to m1 a1, f2 is equal to m2 fn is equal to mn an. m1 a1 का वैल्यू है ना आपके पास, so that's why I have written a1 का वैल्यू I have put it here, r1 alpha, m2 r2 alpha, mn rn alpha. Proper. What we got here, f. And what is the basic formula of torque? देखो आपको टॉर्क निकालना है. So what is the basic formula of torque? The basic formula of torque is fr in terms of scalar quantity. अगर वेक्टर में लोगे तो r cross f है, that is the vector product, but here we just have to derive in magnitude form, so that's why I have written torque acting on a body is given by torque is equal to fr ना. तो first on particle m1, torque acting on particle m1 is given by f1 r1. अच्छा, we have the value of f1 ना. See here we have got the value of f1, so that we have to put here. f1 का वैल्यू आप पुट करोगे m1 r1 अल्फा, और एक यहाँ पर r1 ऑलरेडी है, तो what will it will get square ना. r1 will become square m1 r1 square अल्फा. Similarly tau 2 भी आ जाएगा, tau 1 tau 2 भी ऐसे आएगा, m2 r2 अल्फा, m2 r2 स्क्वायर अल्फा, एंड tau 1 will be mn rn स्क्वायर अल्फा. प्रॉपर और नॉट. बहुत ये सब बहुत सिंपल डेरिवेशन है, वेरी इजी दिस ऑल डेरिवेशन. बहुत सेम आपको करते जाना है बार बार. tau 1 निकाला, tau 2 फर्स्ट पार्टिकल के निकालने का, सेकंड के लिए निकालने का, n के लिए निकालने का, टोटल सबमिट कर देने का बस. वहां पर लीनियर वेलोसिटी था, यहां पर लीनियर एक्सेलरेशन है. वहां पर फोर्स नहीं था, यहां पर फोर्स है. वहां पर काइनेटिक एनर्जी था, यहां पर फोर्स है. फिर वहां पर काइनेटिक एनर्जी निकालना था, यहां पर टॉर्क निकालना था. टॉर्क का फॉर्मूला f1 r1 प्रॉपर, और f का फॉर्मूला ma, और a का फॉर्मूला r अल्फा. बस इतनी स्टेप आपको फॉलो करना है. नाउ जस्ट यू हैव टू सबमिट दिस, यू हैव टू जस्ट सम ऑफ दिस. टोटल टॉर्क एक्टिंग ऑन अ रोटेटिंग बॉडी इज गिवन बाय टाउ टोटल इज इक्वल टू टाउ 1 प्लस टाउ 2 डॉट 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 टाउ n. अगर आप देखो सबको प्लस करोगे, टाउ 1 ये है, टाउ 2 ये है, एंड टाउ n दिस. टाउ 1 टाउ 2 टाउ 2 क्या कॉमन निकल रहा है, अल्फा इज द कॉमन. सो वी टुक अल्फा कॉमन, और क्या बच रहा है, m1 r1 स्क्वायर, m2 r2 स्क्वायर, m2 r2 स्क्वायर डॉट 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 mn rn स्क्वायर. देखो सबको कर दिया प्लस, अल्फा कॉमन ले लिया मैंने. एंड इसका मतलब क्या होता है, आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था, दिस इज मूवमेंट ऑफ इनर्शिया. सबमिशन के फॉर्मूले को टॉर्क इज इक्वल टू I अल्फा. वी गॉट द फॉर्मूला ऑफ टॉर्क इज इक्वल टू
आई अल्फा. सो दिस इज द प्रूफ ऑफ दिस डेरिवेशन. देखो अल्फा इसलिए कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन से घुमाया था इसको, क्योंकि अल्फा हमें लास्ट में आने वाला था. प्रॉपर. ओके fine. Now we are going to discuss about the radius of gyration. Very important topic and very conceptual. Now we are going to discuss about the radius of gyration. So here we have the next topic, radius of gyration. Achha, now what is the meaning of actually gyration? Gyration means you can say that like something thin circular, कुछ thin circular plate type, एकदम हल्का thin circular circumference, something you can say thin circular plate. You can say the gyration. Proper. कुछ circular thin ऐसा कुछ रहना चाहिए. Okay, so here we are going to discuss about the radius of gyration topic. अच्छा, we know how to calculate the moment of inertia, na? We know how to calculate the moment of inertia of discrete particle in the first lecture. We already discussed. The formula is m1 r1 square plus m2 r2 square dot 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 mn r square. Okay, here I have drawn one diagram. एक एक्सेस है, उसमें बहुत सारे डिस्क्रीट पार्टिकल है, सब डॉट 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 डालना है, डिस्क्रीट पार्टिकल, एंड दैट दिस होल सिस्टम ऑफ पार्टिकल इज रोटेटेड विद कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा. Here there are n number of particles, so m1, m2, mn, which is rotated distance of r1. अच्छा, सब मैं इसको घुमाऊंगा तो सब लोग अपने अपने सर्कल में घूमने लग जाएंगे. Yes, बराबर ना. You can say r1, r2 सब अलग अलग डिस्टेंस पे. प्रॉपर. और जब इन पूरे बॉडी का, इस पूरे सिस्टम ऑफ पार्टिकल, when we'll calculate the moment of inertia, we'll get some value. प्रॉपर. This we already done in the first lecture. How to calculate the moment of inertia. Now what I am doing actually, ये जितना भी पार्टिकल है ना, सब मैं कलेक्ट कर रहा हूं. सपोज मैं सब पार्टिकल को एक एक करके कलेक्ट कर लिया, सबको, जितने भी नंबर है सबको कलेक्ट कर लिया. आफ्टर कलेक्टिंग आई हैव केप्ट ऑल दिस पार्टिकल्स, एंड आफ्टर कलेक्टिंग ऑल दिस पार्टिकल विल बिकम ए बॉडी ना. एन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ये पूरा पार्टिकल एक पूरा बॉडी हो जाएगा ना. सब पार्टिकल मैंने कलेक्ट कर लिया डिस्टेंस ऑफ, और एक पूरा एक एम मास बना दिया. इनका मास स्मॉल एम स्मॉल ऐसा बना था, कैपिटल एम का एक बड़ा मास बना दिया. And that mass I have kept at a distance of k from the axis of rotation. That mass I have kept at a distance of k. This is the whole mass. और सब पार्टिकल का जो कॉम्बिनेशन था उनका, उनको ऐसा इतना बड़ा मास बना, कैपिटल M, and which is kept at a distance of k from the axis of rotation. And it is also rotating with constant angular velocity. Same है. This diagram and this diagram are same. This is the just discrete particles, and after that I have collected all that particle and kept at a distance of k from the axis of rotation. Same है दोनों डायग्राम. And now when we calculate the moment of inertia, I का formula, and we know the formula of moment of inertia is product of mass and square of the square of the perpendicular distance. So product of mass and square of the distance वहां r से दिखाते थे, here we have denoted with k. K is the symbol of radius of gyration. K से दिखाते. अच्छा, exactly ये k टर्म क्यों आया? Why k टर्म क्यों आ गया ऐसी? जब हम r था ऑलरेडी तो उसको रिप्लेस करके k क्यों लाया गया? Exactly when I was discussing about the moment of inertia, always the student used to get bit confused that moment of inertia is about somewhat mass. जब मैंने आपको वो रेसलर का एग्जांपल दिया, जब मैंने आपको इससे पहले अभी बता रहा था कि whatever role mass play in translational, same role is played by the moment of inertia and rotational. So some student used to get confused. So for clearing that concept, for clearing that properly, what is actually moment of inertia, the concept of radius of gyration has came. The radius of gyration of concept came in the picture because to clear the concept of moment of inertia. So देखो अभी यहाँ पर आपको एकदम exactly clear हो जाएगा what is the moment of inertia. We got the formula I is equal to mk square k. K is the distance, just k is the distance of whole mass from axis of rotation. So we get the formula of m into square of the distance. K का formula क्या आएगा? root I by m. K is root I by m. Means k is directly proportional to square root of the moment of inertia. Means अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा तो रेडियस ऑफ गायरेशन भी ज्यादा होगा. मींस रेडियस ऑफ गायरेशन ज्यादा है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है. बट इफ के इज लेस देन मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल बी ऑल्सो लेस. आई विल गिव एन एग्जांपल. लिसन अप. सपोज एक हॉलो स्फीयर है, एक हॉलो मेटल का स्फीयर है और एक सॉलिड स्फीयर, एक भरा हुआ पूरा स्फीयर. दोनों को मैंने कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से घुमा दिया. कौन सा पहले रुक जाएगा और कौन सा लेट रुकेगा? कम ऑन थिंक एंड सी. कौन सा पहले रुक जाएगा एंड कौन सा लेट रुकेगा? एक हॉलो स्फीयर, एक मेटल स्फीयर है, दोनों को मैंने साथ में घुमा दिया. हॉलो मींस पूरा खाली अंदर से, और मेटल स्फीयर सॉलिड स्फीयर है एक पूरा, दोनों को साथ में घुमा दिया कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी. व्हिच विल स्टॉप फर्स्ट? एक्चुअली द हॉलो स्फीयर will not stop first, sorry.
the solid sphere with the sphere which will be very solid rigid sphere that will stop first. Why? Because से ये रहा concept, एक स्पीयर बनाया मैंने, ठीक है, स्पीयर पूरा ऐसा भरा हुआ है और एक हॉलो स्पीयर है, दोनों कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से घुमा दिया, ठीक है, दोनों कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से घुमा दिया. नाउ व्हाट विल हैपन, अच्छा यहां पर ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इसका मास बहुत नजदीक नजदीक डिस्ट्रीब्यूटेड है, सब पूरा मास देखो के एक्सिस से बहुत नजदीक है, जो मास है सॉलिड स्फीयर का वो एक्सिस से बहुत नजदीक नजदीक डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो के कम है, देखो के का डिस्टेंस कम हो जा रहा है ना, देखो मास एकदम नजदीक में डिस्ट्रीब्यूटेड है, के कम है, एंड इफ के इज लेस देन मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल बी आल्सो लेस ना, प्रॉपर. ये आपको समझा फॉर दिस डायग्राम, एंड फॉर दिस डायग्राम हियर सी द के बहुत ज्यादा है ना, देखो मास जो है एक्सिस ऑफ रोटेशन से बहुत दूर डिस्ट्रीब्यूटेड है ना, दिख रहा है सर्कमफरेंस पे पूरा हॉलो स्फीयर है ना, दिस इज द हॉलो स्फीयर, सो हियर के इज ग्रेटर, so if k is greater then moment of inertia is also greater, and in the first lecture I have given the punch point. What was that? Greater the moment of inertia, difficult to start and difficult to stop. एक बार सेट हो जाएगा रोटेशन में, it will not stop easily, ये ज्यादा टाइम तक घूमता रहेगा. Lesser the moment of inertia, easy to start and easy to stop, ये जल्दी स्टॉप हो जाएगा. Here the moment of inertia is less because the mass is distributed very close to the axis of rotation. And if it is distributed very close to axis of rotation, it means k is less, and when k is less, the moment of inertia is less, and when moment of inertia is less, it means easy to start and easy to stop. Lesser the moment of inertia, easy to start and easy to stop. Greater the moment of inertia, difficult to start and difficult to stop. प्रॉपर ना, तो अब आपको पता चलता रहेगा कि मास के ऊपर नहीं डिपेंड हो रहा है, क्योंकि मास सॉलिड स्फीयर का ज्यादा रहेगा ना, तो अंदर भी पूरा भरा है उसके अंदर, तो मास के ऊपर ऐसा मत सोचो कि मास के ऊपर कि मास है मोमेंट ऑफ इनर्शिया. एक्चुअली मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड अपॉन मास, शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी. फर्स्ट पॉइंट, रिमेंबर दिस पंच पॉइंट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड अपॉन मास, शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी. सेकंड, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास इन द बॉडी, मास में डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगा. अभी जैसे हम रिंग का निकालेंगे, वी विल स्टडी द एप्लीकेशन, देयर विल बी वन रिंग और एक डिस्क रहेगा, तो किसका मास ज्यादा है, डेफिनेटली डिस्क का मास ज्यादा है, तो यू विल से हाँ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क इज ग्रेटर, बट इट्स नॉट राइट. मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिंग जो है ना डबल है of disk when the axis passing through center. moment of inertia of ring जो है वो ऑलमोस्ट पूरा डबल है डिस्क से, क्योंकि जबकि डिस्क इतना बड़ा है और उसका मास भी ज्यादा है, और रिंग तो उसके सामने बहुत छोटा है एज कंपेयर टू डिस्क, बट उसका जो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, व्हेन वी विल डू दैट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग इज ऑलमोस्ट डबल ऑफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए disk. Moment of inertia of a ring is double of the moment of inertia of disk when the axis is passing in both the case to the center of mass. प्रॉपर ना, तो मास ये मत सोचो कि मास ज्यादा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा, ये बिल्कुल मत सोचो, डिपेंड करता है मास के ऊपर, मतलब मास ज्यादा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा, ये हटा दो अपने दिमाग से, प्रॉपर. सो यहां पर आपको एग्जांपल दिया मैंने, देखो इससे आपको समझ में आ रहेगा कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड अपॉन मास, शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी. सेकंड थिंग इज डिपेंड अपॉन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास इन द बॉडी. मास डिस्ट्रीब्यूटेड कहां है, देखो यहां पर बहुत नजदीक डिस्ट्रीब्यूटेड है, एक्सिस ऑफ रोटेशन से बहुत नजदीक डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो के कम है तो आई कम है. एंड थर्ड पॉइंट, पोजीशन एंड ओरिएंटेशन ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन. मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड अपॉन मास, शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास इन द बॉडी, एंड थर्ड ओरिएंटेशन ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन. ओरिएंटेशन मींस अरेंजमेंट, आपने एक्सिस ऑफ रोटेशन कहां पर रखा है, सेंटर पे रखा है, टेंजेंट पे रखा है, डायमीटर पे रखा है, कहां पर घुमा रहे हो, ये तीन चीज है जिसके ऊपर मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड करता है. शेप, साइज इन द बॉडी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास इन द बॉडी, पोजीशन एंड ओरिएंटेशन ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन, कौन से एक्सिस पे उस बॉडी को, सर्टेन स्पेसिफिक बॉडी को घुमा रहे हो, प्रॉपर. नाउ वन मोर एग्जांपल, इन द प्रीवियस टेक्स्ट बुक देयर वाज वन इन टेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ, सपोज देयर आर टू एग, वन इज बॉइल्ड एग, आपने पूरा उसको उबाल दिया, एंड सेकेंड वन इज द बेकरी एग. वन इज बॉइल्ड एग एंड सेकेंड जो बेकरी पे मिलता है, दोनों को कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से घुमा दिया. विच विल स्टॉप फर्स्ट, विच विल स्टॉप फर्स्ट. एक्चुअली दैट बॉइल्ड एग विल स्टॉप फर्स्ट. व्हाई, उसमें भी सेम केस है, वो सपोज ये एग है, सो स्फीयर नहीं है, जो बॉइल्ड एग रहेगा उसका मास पूरा यहां पर पूरा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा अंदर तक, एंड ये एक्सिस ले लो, पूरा मास अंदर तक डिस्ट्रीब्यूट हो गया, तो k इज लेस ना,
के कम हो जाएगा ना, मास अंदर आ जाएगा तो के लेस, एंड व्हेन द के विल बी लेस देन मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल बी लेस, सो लेसर द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इजी टू स्टार्ट एंड इजी टू स्टॉप. एंड इन द केस ऑफ दैट बेकरी एग, आपने जब उसको घुमाया, अच्छा अब लिक्विड को जब देखो आप ऐसा बकेट फुल ऑफ वाटर है, आप उसको जब घुमाओगे ना तो एक होल ऐसा खड्डा होते जाता है और पानी जो है सर्कमफरेंस पे आने लग जाता है. और जब अब बेकरी एग लोगे, इन दैट देयर इज टोटल लिक्विड ना, तो अब जब उसको घुमाओगे तो जो उसका लिक्विड है वो सर्कमफरेंस पे आ जाएगा, फेरीफेरी पे आ जाएगा, टोटल एग के सर्कमफरेंस पे आ जाएगा, तो दूर हो जाएगा लिक्विड, यहां था लिक्विड दूर हो जाएगा सर्कमफरेंस, जब आपने घुमा दिया लिक्विड दूर हो जाएगा, मींस के विल बी ग्रेटर, एंड व्हेन द के विल बी ग्रेटर मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल बी ग्रेटर. सो ग्रेटर द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, डिफिकल्ट टू स्टार्ट एंड डिफिकल्ट टू स्टॉप. ये लास्ट टाइम के इंटेक्स क्वेश्चन था, पहले सीटी में भी पूछा जाता था प्रॉपर. सो अच्छा, नाउ वी हैव टू डिराइव द this definition of radius of gyration. What will be the definition of radius of gyration? So here the definition of radius of gyration is the distance between, radius of gyration is defined as the distance between, this is the radius of gyration, radius of gyration is defined as distance between axis of rotation and a point where whole mass of the body, पूरे बॉडी का मास इज सपोज टू बी कॉन्सेंट्रेटेड. इज सपोज, हम लोग ऐसा एक पार्टिकल को निकाल नहीं सकते, बट जस्ट फॉर एग्जांपल होल मास ऑफ द बॉडी इज सपोज टू बी कॉन्सेंट्रेटेड सो एज टू गिव द सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एंटायर बॉडी, और यू कैन से द प्रीवियस बॉडी और एंटायर बॉडी. जो यहां पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया था वही मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला यहां पर भी आएगा. इसका जो कैलकुलेशन करोगे ना, जो आंसर यहां पर आएगा वही यहां पर भी आएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का कैलकुलेशन. कुछ चेंज नहीं किया है, दोनों सेम डायग्राम है. आई एम सेइंग द डेफिनेशन अगेन. रेडियस ऑफ गायरेशन इज डिफाइंड एज डिस्टेंस बिटवीन एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड ए पॉइंट वेयर whole mass of the body, total mass of the body is supposed to be concentrated, एक जगह रख दिया है, supposed to be concentrated so as to give same moment of inertia of the entire body. जो यहां पर था ये प्रॉपर देख लो, यहां पर k is directly proportional to root आया, और जब मास ज्यादा है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा ना, क्योंकि ये ज्यादा तो k कम और k कम तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम. प्रॉपर तो आप सोचना मास ज्यादा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्रॉपर. दिस वाज द कंसेप्ट of radius of gyration which was introduced to clear the concept of moment of inertia properly. Remember the formula, remember this two examples of solid sphere, hollow sphere, and the of that egg, even boiled egg and bakery egg proper.